Hello friends, welcome to Achieve Academy. In the last lecture we have discussed up to question number 3. So we will discuss question number 4 onwards in this particular lecture. So let's begin. तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, the area A is bounded by that part of the x-axis for which x greater than a. तो first condition is x greater than a, and by that branch of the x square minus y square is equal to a square, that is rectangular hyperbola which is in positive quadrant. Okay, so we are having the four quadrants: quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4 quadrant. So this is the positive quadrant, and we have the rectangular hyperbola like this. So what we have to consider, the rectangular that portion, that is that branch of the rectangular hyperbola that is lying in the positive quadrant, that is this we have to consider. Also this highlighted portion is also satisfying this condition, x greater than a. Okay, secondly, what is given in the question is that there is a two-dimensional unit source at a comma 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट सोर्स एट ए कॉमा 0 प्लस 1. ठीक है, प्लस 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक सोर्स है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज sending out liquid uniformly in the all directions. So what we have seen in the sink, that the definition of the sink is that sink is a point in the plane from where the liquid is getting emitted radially as well as symmetrically in all direction at a constant rate. Or by constant rate we mean mass flow rate or volume flow rate. So I have discussed in detail mass flow rate and volume flow rate, okay, in detail. So what we have to find is that we have to show that by the means of transformation of the complex potential, W is equal to log of z square minus a square. Okay, that in the steady motion, the streamlines of the liquid within the area A are portions of rectangular hyperbola. Okay, so basically what we have to show is that this highlighted portion that is lying in the first quadrant, that is positive quadrant of the positive quadrant, is one of the streamline. So first we have to find the streamlines, okay, from this using this complex potential. Okay, streamlines are the imaginary part of this complex potential. So we will get a set of streamlines. Okay, so what we have to show is that this rectangular just positive what we have to show is that this branch of the rectangular hyperbola is one of the streamlines. Which branch? That the branch that is lying in the positive quadrant. Okay, so this one, this highlighted portion is lying in the positive quadrant, and this is one of the streamlines. Okay, streamlines that is calculated based on this complex potential. Okay, so let us find the streamlines, and then we will show that one of the streamlines is this rectangular hyperbola. Okay, that is lying in the positive quadrant. So how we will find the streamline? So phi plus I psi is equal to log of z को क्या, let z is equal to x plus iy, z is equal to the x plus iy का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, तो phi plus I psi is equal to log of x square minus y square minus a square plus 2xy into I. ठीक है, so psi is equal to tan inverse of 2xy upon x square minus y square minus a square. ठीक है, this is the required, this is the stream function. Okay, so what we have to find the streamlines. So how we will get the streamlines? By equating the stream functions to a constant, we get the streamlines. So let us equate this stream function to a constant. So we have phi is equal to tan inverse 2xy upon x square minus y square minus a square. ठीक है, so for getting the streamlines, for deriving the streamline, let us equate this stream function to a constant value. Okay, is equal to c dash. ठीक है, so 2xy upon x square minus y square minus a square is equal to tan of c dash is equal to c. Okay, then केस वन. ठीक है, केस वन में क्या होगा, c टेंड्स टू 0, दिस implies x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 implies y axis, so y axis is one of the streamlines. Y equal to 0 implies x axis, so x axis is one of the streamline. Case 2, case 2 में c tends to infinity, c tends to infinity implies x square minus y square minus a square equal to 0, that is
x square minus y square is equal to a square. That is rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. So we have streamlines as x axis, दूसरा y axis, तीसरा rectangular hyperbola. So the area A is bounded by x axis, y axis as well as rectangular hyperbola that is lying in the positive quadrant. So let us plot this. So what we have to show is that the streamlines of the liquid within the area A are the portions of the rectangular hyperbola. That is, the rectangular hyperbola is one of the streamlines. तो तीनों streamline है ना, तो ये पूछा क्वेश्चन में कि rectangular hyperbola is also a streamline. So this is also a streamline. We have shown this. Now let us plot the area A, region A. देखो ठीक है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कौन लाई कर रहा है, ये दिस इज येलो स्केच पोर्शन. ठीक है, तो इसमें भी x ग्रेटर देन a भी है. उसके बाद हमारा जो ये क्या बोलते हैं, दिस वन, ये ओरिजिन है ना. सो दिस वन इज आल्सो a streamline, that is x axis, and y axis is also a streamline. तो रीजन कौन सा हो जाएगा, दिस रीजन बाउंडेड बाय द x axis, y axis as well as the, ठीक है, दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी. तो दिस इज द रीजन ए. ठीक है ना. तो ये दिखा ना, एरिया ए इज बाउंडेड बाय दैट पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस फॉर विच एक्स ग्रेटर देन ए एंड बाय दैट ब्रांच ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इसका कौन सा ब्रांच है, वो ब्रांच जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो ये तुम्हारा रीजन ए हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रीम लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू साई इक्वल टू 0. ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास साई की वैल्यू क्या आई थी, we have psi is equal to tan inverse 2xy upon x square minus y square minus a square. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रीम लाइंस. ठीक है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ साई, ठीक है, और ये स्ट्रीम लाइन. ठीक है, तो साई इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है. तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. tan 0 is 0, therefore 2xy is 0. उसके बाद psi is equal to pi by 4. तो यहाँ pi by 4 रखो, तो pi by 4 रखने से tan pi by 4 1 हो गया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2xy is equal to 1. तो 2xy upon this expression is 1, therefore x square minus y square minus a square is equal to 2xy. ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, psi is equal to pi by 2. तो psi is equal to pi by 2 रखने से क्या आएगा, पाई बाय 2 रखने से tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये वैल्यू पूरा इंफिनिटी हो जाएगा ना. दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इज इंफिनिटी मतलब दिस इज 0. तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया. तो हमें क्या पूछा था, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ साई फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन. मतलब साई इक्वल टू 0 के लिए ये स्ट्रीम फंक्शन हो गया, दैट इज stream function नहीं, streamlines. What we have to find based on the values of psi, we have to find the streamlines. So how we will get the streamlines, by equating the stream function to that value. तो psi is equal to 0 दिया हुआ है, तो ये streamline हुआ, मतलब x axis और as well y axis is the streamline. और psi is equal to pi by 4, तो ये होगा, ये this expression represents the streamline. and psi is equal to pi by 2 मतलब rectangular hyperbola. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, draw the streamlines हो गया. If rho1 and rho2 are the distance of the point A within the fluid from point plus minus a comma 0, show that the velocity of P is measured by this one. As simple, बहुत simple है. देखो कैसे करोगे इसको.
देखो हमारे पास व्हाट वी हैव द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड माइनस ए लॉग ऑफ जेड प्लस ए। तो W इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड माइनस जेड प्लस ए, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था, suppose this is plus m source at point z1 and we have to find the complex potential at point z. तो what is complex potential, माइनस m log z माइनस z1, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस m का स्ट्रेंथ एट z1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक, और सिंक के केस में क्या होगा, जैसे ये सिंक हो गया तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहीं पे है ना +1 है, तो +1 मतलब सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -1 एट -a,0, ठीक है। ये हो गया सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -1 एट a,0, समझ में आ रहा है। ठीक है, एट a,0 और ये log z माइनस है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या आएगा, दो इसको प्लॉट करो, तो हमारे पास सिंक ऑफ -1 एट a,0 -a,0 सिंक ऑफ माइनस स्ट्रेंथ -1 एट a,0। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो गया तुम्हारा -a,0 a,0, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का सिंक, यहाँ -1 का सिंक, ये pz, तो ये कितना होगा z प्लस a और ये हो जाएगा z माइनस a, ठीक है। ये ओरिजिन, ठीक है, ρ1 एंड ρ2 आर देयर, तो ये ρ1 हो गया और ये ρ2 हो गया। within the fluid so that the velocity of the fluid p, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट p, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो q इक्वल टू क्या होगा dw अपॉन dz। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो 1 बाई जेड प्लस ए माइनस 1 बाई जेड माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए माइनस, हाँ सॉरी ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास जेड प्लस ए और प्लस जेड माइनस है, तो ए कैंसिल, तो 2z अपॉन जेड प्लस ए मॉड जेड माइनस ए, ठीक है। ये हो गया q की वैल्यू, तो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई 2z अपॉन जेड प्लस ए और जेड माइनस ए, तो 2 ऑफ जेड, ठीक है। तो ये जेड मॉड हो गया, पूरे मॉड था ना, ये पूरे मॉड है, ये मॉड है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट द मॉड, 2z मॉड, तो जेड मॉड क्या हो गया, ये ओपी, तो 2 ऑफ ओपी अपॉन जेड प्लस ए इज ρ1 और जेड माइनस ए इज ρ2, तो q इज इक्वल टू 2 ओपी अपॉन ρ1 ρ2, ठीक है। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, ये क्या दिया हुआ है, ρ1 and ρ2 are the distances of a point P within the fluid from the point plus a मतलब plus a, 0 और minus a, 0, so that the velocity of fluid at point P is measured by this one, O being the origin, ठीक है, is the velocity of fluid at point P, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिया, find the stream function of a two-dimensional motion due to two equal sources and equal sinks situated the midway between them, देखो ये लिखा है ना, टू इक्वल सोर्सेस, तो प्लस एम एंड एन इक्वल सिंक, तो ये माइनस एम यहाँ पे लाएगा, -a, 0 a, 0 ये 0, 0, ठीक है। तो दिस सिंक इज सिचुएटेड द मिड वे बिटवीन द, दिस टोटल लेंथ इज 2a
2 है तो ये हो गया ए, दिस इज ए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट जेड इज गिवन बाय, यहाँ पे निकाल पी जेड। ठीक है, तो ये हो गया जेड प्लस ए, ये जेड मॉड और ये जेड माइनस ए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू माइनस एम लॉग जेड प्लस ए। ठीक है, जेड माइनस ए, और क्योंकि माइनस ए है ना यहाँ पे, तो ये टोटल डिस्टेंस जेड प्लस ए है, तो जेड माइनस जेड वन होता है, तो देयर कोऑर्डिनेट इज माइनस ए, सो जेड प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद ये वाला, तो माइनस एम लॉग जेड माइनस ए। ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट हियर इज ए कॉमा जीरो, और माइनस एम है तो ये प्लस एम लॉग ऑफ जेड माइनस जीरो, ओरिजिन जीरो पे है तो जेड। ठीक है, तो हमें करना फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन निकालना है ना, बहुत सिंपल है, तो इसको हटा दो, इसका काम हो गया। ठीक है, W इक्वल टू माइनस एम कॉमन ले लो, तो लॉग ऑफ जेड प्लस ए प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस ए माइनस लॉग ऑफ जेड। ठीक है, तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ से W इज इक्वल टू माइनस एम लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस आई वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 प्लस आई साई। तो इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो हमने क्या बताया था, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल जेड, ये होता है ना। तो माइनस एम ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू माइनस एम tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से साई इक्वल टू माइनस एम tan इनवर्स ऑफ, ये देखो y और ये x माइनस है, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x माइनस है और प्लस x माइनस है, तो ये x प्लस है प्लस x माइनस है, तो ये हो गया a कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा 2xy, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो x प्लस ए इंटू, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। psi is equal to minus m tan inverse of 2xy upon x square minus y square minus a square minus of y upon x upon 1 plus 2xy square upon x x cube minus y square x minus a square x। ठीक है, ये आएगा ना, तो इससे आ जाएगा साइज इक्वल टू माइनस एम tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास साइज इक्वल टू माइनस एम tan इनवर्स ऑफ, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्स वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस
एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। वाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये साई की वैल्यू होगी। फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन, तो दिस द रिक्वायर्ड इज द स्ट्रीम फंक्शन, डायरेक्ट लिखो, रिक्वायर्ड नहीं, इज द स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन हो गया। स्ट्रीम लाइन निकालना रहेगा तो क्या होगा, इसको कांस्टेंट की तरह इक्वेट करो। स्ट्रीम लाइन निकाल के दिखाता हूँ, देखो स्ट्रीम लाइन से पूछा नहीं है, वैसे निकालना है तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ हाउ टू गेट द स्ट्रीम लाइन्स। ये IAS 1996 में पूछा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख देंगे सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, साई अपॉन माइनस एम tan ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन माइनस एम का tan। ठीक है, इज इट सेल्फ ए कांस्टेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तब स्ट्रीम लाइन्स कैसे निकालोगे, देखो। ठीक है, तो यहाँ से केस वन ले लो, केस वन में सी डबल डैश टेंड्स टू जीरो इम्प्लाइज, ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू जीरो, डेट इज एक्स एक्सिस इज वन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, उसके बाद केस टू में क्या हो जाएगा, सी टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये वाला जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल ऑफ रेडियस ए, दैट इज r इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू जीरो इज वाई एक्सिस। तो स्ट्रीम लाइन्स क्या क्या हो गया हमारा, पहला हो गया तुम्हारा x एक्सिस, दूसरा हो गया y एक्सिस, तीसरा हो गया सर्किल r इज इक्वल टू ए, r इक्वल टू ए इज ए सर्किल ऑफ रेडियस a, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हो गया, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड इज मूविंग इरोटेशनली स्टेडीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ म्यू एंड इक्वल सिंक एट डिस्टेंस 2a फ्रॉम इट। ठीक है, तो सोर्स दिया हुआ है और सिंक दिया हुआ है। प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड व्हिच पासेस इन ए यूनिट टाइम अक्रॉस द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सोर्स इज वन, एज सिंपल। देखो इसमें क्या है ना, हमने जो मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट डिस्कस किया था, दैट वाज फॉर ए प्लेन सरफेस। ओके, सो दिस इज अ 3D मूवमेंट, 3D टाइप ऑफ मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, मास फ्लो रेट सपोज करो टोटल जैसे 3D है सरफेस है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो इसको अलग अलग दिखाता हूँ मैं। 2D के केस में क्या होता है, मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट लिखते हैं पहले, 2D हो गया और 3D हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था हमने, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए भी, रो इंटू एरिया इंटू क्यू आर, और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू क्यू आर। समझ में आ रहा है, तो उसी तरह इसमें मास फ्लो रेट इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू क्यू आर। समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया क्या आएगा, रो इंटू क्या लिया था हमने, 2 पाई आर इंटू लेंथ लिया था यूनिट लेंथ का 1 यूनिट इंटू क्यू आर, बताया था ना, इस तरह का होता है ना, दिस इज द सोर्स।
तो वाटर इज गेटिंग इमिटेड रेडियली एंड सिमेट्रिकली, तो ये सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू ये यूनिट लेंथ, तो 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस एंड द लेंथ दैट इज 1 यूनिट। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया, ये पूरा ये जो सरफेस एरिया है ना, ये इसका क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब इज 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर इंटू ए यूनिट हो गया, तो क्यू आर मास फ्लो रेट है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आया था, स्ट्रेंथ क्या आया था, यहाँ से स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन रो इंटू 2 पाई इज इक्वल टू आर इंटू क्यू आर। समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या आया था, Q इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 1 यूनिट इंटू क्यू आर। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इक्वल टू आर डॉट क्यू आर। ठीक है, अब देखो 3D के केस में क्या होगा, मास फ्लो रेट इक्वल टू रो इंटू एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 3D सरफेस है ना, इंटू क्यू आर। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन रो इंटू 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू क्यू आर, और इसमें क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू आर। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, तो Q अपॉन रो इंटू 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या होगा, 3D के केस में m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया m अपॉन आर स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू। समझ में आ रहा है, और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू आर इज इक्वल टू m अपॉन आर, स्मॉल m अपॉन आर, स्ट्रेंथ अपॉन आर। ठीक है, और इसमें क्या आता है, यही सिमिलर, क्यू आर इज इक्वल टू m अपॉन आर। ठीक है, तो फॉर द 2D केस, 2D के केस में क्या था, पॉइंट सोर्स जो था उसमें है ना, बाय पॉइंट सोर्स विल मीन दिस इज कमिंग perpendicular to the plane of the paper. Okay, so 2 pi r into unit length is the our area, but in case of 3D the total area is 4 pi r square. That's why the velocity is given by m upon r square. समझ में आ रहा है, तो ये हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे m upon r square because this question is of 3D motion. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या दिया हुआ, इनफाइनाइट मास ऑफ ए लिक्विड इज मूविंग इरोटेशनली स्टडी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ म्यू। ठीक है, तो ये प्लस म्यू हो गया, और एंड इक्वल सिंक एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम इट, तो माइनस म्यू हो गया एट अ डिस्टेंस 2a, मतलब ये a लेंथ दिया हुआ है, दिस इज a लेंथ। समझ में आ रहा है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड विच पासेस इन यूनिट टाइम अक्रॉस द प्लेन, तो ये प्लेन है, तो ये एट राइट एंगल विच बाइसेक्ट्स क्या लिखा, which bisects at right angle the line joining source and sink। देखो ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे सपोज लेट अस टेक एन एलिमेंटल एरिया dx and dy at a distance of y from the origin। ठीक है, अब देखो ये सोर्स है ना, सोर्स है तो यहाँ से लिक्विड ऐसे निकल रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने क्या बताया, क्यू आर इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर, डेट इज यहाँ पे सिंक सोर्स का स्ट्रेंथ क्या दिया है म्यू, तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये सिंक है तो लिक्विड इसके अंदर जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका वेलोसिटी म्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब देखो लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज ए थीटा। ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज ए। ठीक है, तो यहाँ से लेट अस कंसीडर दिस एज आर। ठीक है, तो ये Qn की वैल्यू क्या आ गया, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन Qn। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो Qn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
म्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा है ना, और ये भी थीटा होगा, प्लस म्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो क्यू एन इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्यू एन की वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसको हम पूरा अगर 360 डिग्री रोटेट कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो एरिया को हमने, अगर एरिया को हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा मुझे, वॉल्यूम दे देगा। तो डीएम ऑफ दिस, तो this elemental circle, okay, this elemental, suppose let us take this as a tube, okay, just like a ring type, okay, just like a ring. So suppose this is an area and we move it like a 2 pi, move along the circumference, then it will generate a total volume। ये पूरा वॉल्यूम देगा ना, एक रिंग बना देगा। समझ में आ रहा है? तो ये एरिया मान लो dx dy है, dx dy, और ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये y है, तो ये पेरीमीटर हो गया 2 पाई इंटू वाई। तो अगर 2 पाई वाई और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से dx dy, तो ये टोटल क्या देगा, dv दे देगा। और हमें dm अगर निकालना है तो dm इज इक्वल टू रो dv, तो हो जाएगा रो dx dy और 2 पाई वाई। दिस इज आवर मास। ओके, सो let us consider Qn क्या है हमारे पास, Qn इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एम, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, दिस इज क्यू एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हमारे पास डी एम है, तो रो डी एक्स डी वाई 2 पाई वाई इंटू क्यू एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वाई 2 पाई वाई क्यू एन स्क्वायर। अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज क्यू एन, मूवमेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, क्यू एन होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी को क्यू एन रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको डिलीट करो यहाँ पे। ठीक है, तो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ रो और इनटू, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो रो इंटू क्यू एन क्यूब, रो पाई, रो और पाई, रो पाई क्यू एन क्यूब वाई डी वाई। ठीक है, तो ये जगह रो पाई इंटू क्यू एन क्यूब वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू ये है, तो क्यू एन क्यूब का वैल्यू रखो 8 म्यू क्यूब अपॉन आर टू द पावर 6 कॉस क्यूब थीटा इंटू वाई डी वाई। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, मतलब a अपॉन दिस r, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट cos थीटा की वैल्यू, इसको r के टर्म्स में रखो ना, r के टर्म्स में रखो, तो a अपॉन r। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रो पाई इंटू 8 म्यू क्यूब अपॉन आर 6 इंटू कॉस थीटा क्या आया बी बाई एच, तो ए क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू वाई डी वाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, वाई का इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी। सपोज वी इंटीग्रेट दिस y from 0 to infinity, so it will consider the whole volume, okay। y माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इसको y को वी आर मूविंग y टू सम डिस्टेंस, ओके, तो ऑटोमेटिकली इट इज गेटिंग टेकिंग of the whole circumference into consideration। समझ में आ रहा है? तो देखो अब क्या आएगा, dk अपॉन dt, तो dk अपॉन dt क्या आएगा,
जीरो से इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई रो म्यू क्यूब इंटू ए क्यूब, है ना, 8 रो पाई म्यू क्यूब ए क्यूब, ठीक है, इंटू वाई डी वाई अपॉन आर टू द पावर 9, ठीक है, जीरो से इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई रो म्यू क्यूब ए क्यूब, ठीक है, और वाई डी वाई अपॉन आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट, तो 9 है तो 9/2, ठीक है, जीरो से इंफिनिटी, तो लेट y इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो dy इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई रो म्यू क्यूब ए क्यूब। अब देखो एट व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास y की वैल्यू a tan थीटा, y की वैल्यू a tan थीटा इंटू डी वाई की वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस ये देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का पावर 9/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 9/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 9 और सेक टू द पावर 9 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर और a9, तो ए स्क्वायर और a9, तो यहाँ a7 रह जाएगा ना, a7 बाहर ले लो, a7 और यहाँ a क्यूब है तो a4 हो जाएगा, a4, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा अलग होगा। अब इसका रह गया, देखो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और सेक 9 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 7 थीटा हटा दो यहाँ से, सेक 7 थीटा, अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस 7 थीटा, कॉस 7 थीटा। अब इसको क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 6 थीटा, कॉस 6 थीटा, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है ना, देखो कैसे करेंगे इसको, तो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई रो म्यू क्यूब अपॉन ए टू द पावर 4, है ना, 0 से पाई/2 कॉस 6 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, नहीं सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा, माइनस साइन सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई रो म्यू क्यूब अपॉन a4 इंटू, अब देखो कॉस थीटा और पाई/2, तो कॉस की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कॉस 0 1 होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू पाई/2, तो कॉस पाई/2 0, और कॉस थीटा की वैल्यू टी, तो टी टू द पावर 6 इंटू साइन थीटा डी, तो माइनस डी टी, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अब देखो ये रिवर्स कर देंगे इसको,
है ना। इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस है, तो जगह 8 पाई माइनस हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ना, 8 पाई रो माइनस अगर हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1, तो ये हो जाएगा 8 पाई रो म्यू क्यू अपॉन A4 इंटू टी टी डी टी, तो ये हो जाएगा T7/7, ये हो जाएगा 1 और 0, तो t to the power 1, तो ये हो गया 1/7, 1/7 dk अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पाई रो म्यू क्यूब अपॉन 7A4। ठीक है, आंसर यही पूछा था ना क्वेश्चन में। देखो द लाइन ड्रेनिंग द सिंक इज 8 पाई रो म्यू क्यूब अपॉन 7A4, सो द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज 8 पाई रो म्यू क्यूब अपॉन 7A4, एज सिंपल एज। तो इसमें 3D मोशन का कंसेप्ट था, 3D मोशन, सोर्सेज एंड सिंक इन द 3D मोशन।